गाइस वेलकम टू माय चैनल। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। फटाफट से हम टॉपिक पे आते हैं कि अगर आप नेटवर्किंग के स्टूडेंट हो और आप नेटवर्किंग को बेसिक नेटवर्किंग क्या होती है वो समझना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखें। यहाँ पे हम सारे नेटवर्किंग के सारे कॉन्सेप्ट हम वेरी एक दो लाइन में वेरी शॉर्ट लाइन में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए टाइम बर्बाद करने से पहले स्टार्ट कर देती कि Introduction to the network. Networking is the process of connecting computers and devices together. It allows user to share data, resources and services. Networking forms the foundation of the internet. What is network? A network is a collection of connected devices. These devices communicate with each other using defined rules. Example include like home, office and mobile network. What type of network available right now? Networks are classified based on size and coverage. Common types include LAN, WAN, MAN, and PAN. Each type serves a specific networking need. LAN, local area network. A LAN connects device within a small geographic area. It is commonly used in a home, school, and offices. LAN provide a high speed and reliable communication. A WAN network. WAN is stand for Wide Area Network. A WAN connects device across large geographic area. The internet is the largest example of WAN. WAN use public and private communication links. MAN network. MAN, a metropolitan area network. A MAN covers a city or a large campus area. It is larger than a LAN but smaller than a WAN. MANs are often used by a server provider. चलो अगली बात करते हैं पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क। अ पेन कनेक्ट्स पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इट ऑपरेट्स ओवर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ब्लूटूथ इज़ अ कॉमन एग्जांपल ऑफ पेन। डिवाइस नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क डिवाइसेस आर यूज्ड टू कनेक्ट एंड मैनेज नेटवर्क्स। दे कंट्रोल हाउ डेटा फ्लोज बिटवीन डिवाइसेस। Each device performs a specific function. A router connects different between together, connects networks together. It posts IP address to forward data packets. Routes are essential for internet access. तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं सारी चीज़ राउटर हब स्विच सारे एक एक दो दो लाइन में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई राउटर मतलब ये स्विच मतलब ये वगैरह। Switch. A switch connects devices within a same network. It sends data only to the intended destination. This improves network efficiency and security. What is hub? A hub is a simple network devices. It broadcasts data to all connected devices. Hubs are rarely used in modern network. अब बात करते हैं मॉडम। देखिए दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब चैनल को करना ज़रूर मत भूलिए। मॉडम कन्वर्ट अ डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। इट अलाउज कम्युनिकेशन विथ एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मॉडम इनेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी। व्हाट इज नेटवर्क केबल? Network cable transmit data between devices. They provide stable and high-speed connection. Different cables support different speed. UTP cable is the most commonly used network cable. It is affordable and easy to install. UTP cable are widely used in Ethernet network. अब बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक cables transmit data using light signals. They provide very high speed and bandwidth. Fiber cable are used for the long distance communication. Wireless networking. What is wireless networking? Use radio waves for the communication. It eliminates the need for physical cables. It provides a flexibility and mobility. What is Wi-Fi? Wi-Fi is a popular wireless network technology. It allows devices to connect to the internet wirelessly. Wi-Fi is used in home, office and public area. चलो दोस्तों अब बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजिस्ट। नेटवर्क टोपोलॉजिस्ट डिफाइन हाउ डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर. It affects network performance and reliability. Different topology are used for the different needs. अब बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। In star topology, all devices connect to the central device.
It is easy to manage and troubleshoot. Star topology is widely used in modern network. What is bus topology? In bus topology, all devices share a single cable. It is simple to install and cost effective. Failure of the cable can affect the entire network. चलिए दोस्तों बात करते हैं OSI model. The OSI model consists of 7 layers. It is standardized network communication. It helps in understanding and troubleshooting network. The physical layer handles physical data transmission. It includes cables, connectors, and signals. It is the lowest layer of the OSI model. Next to data link layer. The data link layer ensures error-free data transfer. It uses MAC addresses for the communication. Switches operate at this layer. What is network layer? The network layer manages data routing. अगर data routing को manage करना है तो हम network layer यूज़ करेंगे. और डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए नेटवर्क लेयर IP एड्रेस यूज़ करते हैं. राउटर ऑपरेट इन दिस लेयर. नेटवर्क लेयर स्पेसिफिकली राउटर ऑपरेट होते हैं इन लेयर में. चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में. द ट्रांसपोर्ट लेयर एंश्योर रिलायबल डेटा डिलीवरी. इट यूजेस TCP एंड UDP प्रोटोकॉल. अगर एग्जाम के लिए आ सकता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर कौन से प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट लेयर TCP एंड UDP प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं. एंड या इट कंट्रोल्स डेटा फ्लो एंड एरर हैंडलिंग. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सा लेयर है जो डेटा फ्लो एंड एरर हैंडलिंग कर सकता है, तो आप बोल सकते हो कि ट्रांसपोर्ट लेयर. अब बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर. द एप्लीकेशन लेयर इज क्लोजेस्ट टू द यूज़र. इट सपोर्ट्स एप्लीकेशन लाइक ब्राउज़र एंड ईमेल. इट प्रोवाइड नेटवर्क सर्विस टू द यूज़र. अब बात करते हैं कि IP एड्रेस. एन IP एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क. It is required for communication between devices. IP address can be static or dynamic. What is IPv4? IPv4 uses a 32-bit addressing system. It is written in dotted decimal format. IPv4 has a limited number of addresses. अब बात करते हैं IPv6. ज़्यादातर वो हम रेगुलर रूटीन लाइफ में IPv6 यूज़ नहीं करते. एंड ऑर्गेनाइजेशन में भी IPv6 काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ गिनी चुनी ऑर्गेनाइजेशन में ही IPv6 यूज होता है. तो IPv6 यूज अ 128-bit एड्रेसिंग सिस्टम. इट प्रोवाइड्स अ मच लार्जर एड्रेस स्पेस. IPv6 सॉल्व्स द IPv4 एड्रेस शॉर्टेज. अब बात करते हैं प्रोटोकॉल की. प्रोटोकॉल डिफाइन रूल्स फॉर द कम्युनिकेशन. दे एंश्योर प्रॉपर डेटा ट्रांसमिशन. Protocol enable interoperability between devices. अब बात करते हैं HTTP. HTTP is stand for Hypertext Transfer Protocol. is used for the transferring web pages. It work on a request response model. ये बहुत important चीज़ है एग्जाम के लिए और नॉलेज के लिए भी. It works on a request response model. HTTP does not encrypt data. एंड अभी बात करते हैं HTTPS. यहाँ से आपको ये भी पता चल सकता है कि HTTP एंड HTTPS के बिटवीन डिफरेंस क्या है. HTTPS इज़ अ सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP. इट एनक्रिप्ट्स डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन. HTTPS प्रोटेक्ट्स यूज़र इंफॉर्मेशन. चलिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम शुरू करने जा रहे हैं, बट अभी तक मैं आपको कुछ भी समझ ना आए और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें. मैं ट्राई करूँगा कि आप तक रीच आउट करूँ और उसका मैं आंसर दे सकूँ. और अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें. चलिए बात करते हैं DNS की. DNS मीन्स डोमेन नेम सिस्टम. DNS कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस. फॉर एग्जांपल फ़ोन बुक. राइट, फ़ोन बुक में हम अगर आपको मेरा नंबर सेव करना है तो आप टेक वाला भैया लिख सकते हो. राइट, वो आपको याद रहेगा, पर मेरा मोबाइल नंबर आपको याद नहीं रहेगा. So that's called DNS. It makes internet usage easier. DNS act like an internet directory. वही फ़ोन कॉल वाली directory. अब बात करते हैं DHCP. DHCP automatically assign IP address. It reduce manually configuration work.
DHCP मिनिमाइज कॉन्फ़िगरेशन एरर्स। अब बात करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स डेटा एंड सिस्टम्स। इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस। सिक्योरिटी इज क्रिटिकल फॉर द मॉडर्न नेटवर्क। अब बात करते हैं कि फायरवॉल की। फायरवॉल मॉनिटर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। इट ब्लॉक्स ऑथराइज्ड एक्सेस। फायरवॉल एनहांस नेटवर्क सिक्योरिटी। अगर आपको आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी बढ़ानी है तो आप फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हो। अब बात करते हैं कि VPN। A VPN creates a secure network connection. It encrypts internet traffic. VPN are used for the privacy and remote access. Now अभी बात करते हैं ट्रबल शूटिंग की। ट्रबल शूटिंग आइडेंटिफाइज नेटवर्क प्रॉब्लम। इट यूज टूल एंड टेक्निक्स। इट हेल्प्स मेंटेन नेटवर्क परफॉर्मेंस। पिंग यानी कनेक्शन। पिंग टेस्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइस टू डिवाइस। इट मेजर रिस्पॉन्स टाइम। पिंग हेल्प डिटेक्ट कनेक्शन इश्यू। अब बात करिए ट्रैक राउट। ट्रेस राउट शो द पाथ ऑफ डेटा पैकेट्स। इट हेल्प्स लोकेट नेटवर्क डिलेज। इट इज़ यूजफुल फॉर द डायग्नोस्ट। अगर आपको कोई सिस्टम डायग्नोस कर दिया है दैन ट्रेस राउट इज़ वेरी यूजफुल। अब चलो दोस्त बात करते हैं कि नेटवर्किंग में करियर क्या है। नेटवर्किंग ऑफर्स मैनी करियर अपॉर्चुनिटी roles including a network engineer or administration. इस फील्ड हैज़ स्ट्रॉन्ग जॉब डिमांड। अगर मैं कनाडा की बात करूँ, अगर आप कनाडा में हो और आप IT में हो, राइट, तो अब अगर आपके पास नेटवर्किंग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एज ए सर्विस डेस्क, एज ए टेक सपोर्ट, एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट भी जॉब हायर कर सकते। डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हो और आप हायर हो सकते हो। ओके, सर्टिफिकेशन की बात करूँ तो आप क्या क्या कर सकते हो। सर्टिफिकेशन मीन्स कि आपके पास स्किल है, पर पॉपुलर सर्टिफिकेशन कौन से है, लाइक इंक्लूड CCNA एंड नेटवर्क प्लस। दे इम्प्रूव योर करियर प्रोस्पेक्ट्स। ओके, अब कंक्लूजन की बात करते हैं। नेटवर्किंग कनेक्ट्स डिजिटल वर्ल्ड। इट सपोर्ट्स कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज। नेटवर्किंग इज एसेंशियल इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। Thank you so much for your time, attention. This is preservation covered networking fundamental. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो। एंड आप अगर मेरी चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो एंड तक देखने के लिए।